गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासती बजट सेशन के उनके खुतबे के बगैर आगाज़ के मसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने रिवायत की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनसे कहा है कि सेशन मुलतवी हुआ है, मनसूख नहीं। उन्होंने कहा कि इस सेशन के मुलतवी होने के 5.5 माह मुकम्मिल हो गए हैं। तकनीकी तौर पर हुकूमत सही कह रही है, लेकिन गवर्नर का खुतबा एक अखलाकी ज़िम्मेदारी और रिवायत है। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर का खुतबा नहीं होता, बल्कि दरअसल रियासती हुकूमत के कारनामे होते हैं, जिसका इजहार गवर्नर अपने खुतबे में करता है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ही से अवाम के दरमियान रहती हैं और वो अवाम की दोस्त हैं। They told it is only adjourned, not prorogated, but adjourned 5.5 months adjourned. So it is quite long gap, and it is almost a customary. Even though constitutionally some of the incidences happened without some of the assembly sessions and one parliament session, technically they are telling the point, but morally there should have been the governor's address, and it also gives the opportunity for the opponents as well as the ruling party members, because it is not the governor's address. Governor is going to read the achievement of the state government. So that discussion, that right of the member of legislative assembly and member of legislative council denied. That is my humble opinion. And I am always a people's person. So even though technically they cited these points, I just endorsed the budget session and I gave permission to conduct the budget session, even though my address was not there, because I didn't want to stand between the government and the people for getting the welfare schemes through the budget. So I gave permission immediately. My concern was this type of, because adjournment and then prorogation, these type of technical reasons should not come in between the government and the governor's address. So always there should be a customary which is followed. I could have done, but it's okay. But when something is happened, I don't mind. But I want always people to get the benefits. So I immediately gave permission to the session. No problem. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने रायदुर्गम इलाके में बैनुल-अक़वामी मसालिहती मरकज़ की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। तनाज़ात के हल के लिए यह हिंदुस्तान का पहला अहम मसालिहती मरकज़ होगा। नानक रामगुड़ा से यह मरकज़ फ़िलहाल आरज़ी तौर पर काम कर रहा है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला के साथ मिलकर इसका इफ्तिताह किया था, तभी से वो आरज़ी कैंपस में काम कर रहा है। संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए जस्टिस रमन्ना ने इस मरकज़ के लिए शहर के क़ल्ब में अहम अराज़ी फ़राहम करने और इस मरकज़ की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए అలాట్ करने पर तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। ఈ దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు తెచ్చినటువంటి ప్రముఖుల్లో మన తెలంగాణ బిడ్డ, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి, మొదట తెలంగాణ బిడ్డ తర్వాత ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు ఈ దేశానికి ఆర్థిక సంస్కరణలు తెచ్చి దేశంలో ఎన్నో మార్పులు తెచ్చాడు. కేసీఆర్ గారిది చాలా పెద్ద చెయ్యి. ఆయన ఏం చేసినా కూడా చాలా ఆర్భాటంతో చాలా పెద్దగానే చేస్తాడు. అది మరి ఆయన పెద్దలు, ఆయన తీర్చిదిచ్చినటువంటి గురువులు ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి వరం అనుకుంటాను. అటువంటి మనిషి ఈ గ్రాండ్ వేలో, అంటే ఈ గొప్ప పద్ధతిలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయటం, అదేవిధంగా ఇవాళ మరి ఇక్కడ ల్యాండ్ అలాట్ చేయటం, ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా నడిపించడం ఆయన యొక్క పెద్ద మనసుకి నిదర్శనం. ఆయనకి, ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఆయన మంత్రులకి, అధికారులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि कोरोना की वजह से मुलाजिमत से महरूम 47% ख़वातीन को मुलाजिमत के मौक़े फ़राहम करना तमाम की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने हाईटेक्स में बिजनेस वुमेन एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया। 3 दिन तक ये एक्सपो जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ इलाक़ों की ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं। ये खातून ताजरीन अपने प्रोजेक्ट्स को नुमाइश के लिए रखा है। उन्होंने तिजारत के लिए आने वाली ख़वातीन की टेक्नोलॉजी के ज़रिए मदद का भी तयक़ुन दिया।
మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు చేయూతనివ్వడానికి కోవే లాంటి సంస్థలు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టినా కోవిడ్ సమయంలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయినటువంటి మహిళలు చాలామంది ఇంకా కూడా మళ్ళీ జాబ్లలో జాయిన్ కాలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులలో ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు ప్రభుత్వాలు చేపట్టాలి, పారిశ్రామికవేత్తలు చేపట్టాలి. ప్రభుత్వాలు పరిశ్రమలు కలిసి పనిచేసినట్టయితే కోవిడ్ సందర్భంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయినటువంటి ఆడబిడ్డలందరూ కూడా మళ్ళా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి కోవే వారితో కలిసి పనిచేయడానికని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనేక మంది మహిళలు హైదరాబాద్లో ఎవరైతే వారి సొంతగా వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. మనందరం గర్వపడాలి. హైదరాబాద్ బేస్డ్గా మహిళా సాధికారితను సాధించడం కోసం ప్రారంభమైనటువంటి ఒక సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి అనేక మందికి దేశవ్యాప్తంగా సహాయం చేస్తున్నందుకు మనం గర్వపడాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకు కూడా వారి సొంత వ్యాపారాలు ఎలా పెట్టుకోవచ్చు, ఎలా నడిపించవచ్చు అనేటటువంటి వాటి మీద శిక్షణ ఇవ్వడం పైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్టయితే ఒక ఉద్యోగం కల్పించడం కాదు, ఒక వ్యాపారం పెడితే వారు 10 మందికి ఉద్యోగం ఇస్తారు. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పి ఇవాళ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ ఇక్కడ హాజరైనటువంటి దేశవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి అనేక మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కోవే వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. सेक्रेटरी तेलंगाना मुखन्ना नरसिम्हाचार्युलु ने कानून साज कौंसिल के सदर नशीन के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने इस ओहदे पर इंतखाब के लिए 14 मार्च को तारीख मुकर्रर की है। इस सिलसिले में पर्चे नामजदगियाँ इतवार 13 मार्च को 10:30 बजे दिन तक 5 बजे शाम दाखिल की जा सकती हैं। असम्बली में वक्फ़े सवालात के मौके पर मजलिसी अरकान मोहम्मद मुमताज़ अहमद ख़ान और मोहम्मद मौज़म ख़ान ने आरटीसी की मिनी बसों का मसला उठाया। उन्होंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार से पुराने शहर में मिनी बसें चलाने का मुतालबा किया, जिनकी तादाद में कमी कर दी गई है। उन्होंने चार मीनार बस स्टैंड की तामीर का भी मुतालबा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आरटीसी खसारे में चल रही है, इन मिनी बसों की जगह बड़ी बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में भी इजाफे से आरटीसी को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरी है उन इलाकों में नुमाइंदगी करने पर ये मिनी बसें चलाई जाएंगी। सिटी के एमएलए साहब मौज़म खान साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साहब। कल भी हम डिमांड के ऊपर मौज़म खान साहब को जो है बहुत सारे रिप्लाईज दिए हैं, थोड़े उसमें फिर से आप क्वेश्चंस पूछे हैं सर, और आंकड़े भी बहुत मांगे साहब। जब का तब आंकड़े मिलना बोले तो मुश्किल है, जरूर मैं भिजा दूंगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे सवालों को रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा साहब। अब हम खमम से साहब, हमारे पास मुसलमान बहुत होते हैं तो उर्दू में बोलने के लिए कोशिश करता हूं, कोई अगर गलती हो गया तो माफ कर दीजिए साहब। ये आप बोले ऐसा, ये जो मिनी बसेस के बारे में जो कल भी जिक्र हुई थी, आज भी जो आपने बताया था मिनी बसेस को क्यों नहीं चला रहे करके साहब, अब आपका ओल्ड सिटी नहीं रहा साहब। आप और आपके अकबरुद्दीन साहब और आप एमएलए और हमारे केटीआर साहब पूरे मिलके जो है रोडों को इतना वाइडन कर दिया और ऐसे शानदार फ्लाईओवर्स बना दिए हैं कि वहां पे छोटे छोटे बसों घुसने की जरूरत नहीं साहब, बड़े बड़े मेट्रो आ रहे साहब। 500 करोड़ सब मैं बताता हूं साहब, मैं आपका भी सवाल जरूर मैं बताता हूं साहब। आपको जो है जो मिनी बसेस जो है इससे पहले हम चला रहे थे, अब जो उसके जगह पे जो सर बड़े बड़े बसेस ही चला रहे। मिनी बस को क्या है साहब चलाने में तक दिक्कत क्या है बोली तो उसको जो है अर्निंग पर किलोमीटर जो है बहुत कम आता, तो बड़े बस को चलाया तो ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकते हैं। और आपके वैसे भी अभी सड़क ठीक हो गए, इसके वजह से बड़े बसेस ही चला रहे। कुल मिला के आपके ओल्ड सिटी में साहब 2014 से लेके अब तक जो है खाली 98 बसेस कम करे हैं, उसमें मिनी बसेस जो कम करे हैं 20-25 ही कम करे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को एक लेटर दीजिए, अगर कोई जगह पे मिनी बसेस अभी चलाना है तो हम जरूर जो है रिज्यूम कर देंगे। मगर आप हमारे बलाला साहब भी इशारा कर रहे, जरूर आपका भी हम सुनेंगे। मगर क्या है साहब, आरटीसी में अभी ये हालत है कि 2 साल पहले जो है साहब डीजल का जो है 62 रुपए डीजल का प्राइस था, अभी जो है 98 रुपीज डीजल का प्राइस हो गया सर। इसमें ज्यादा मतलब हर रोज जो है 1 करोड़ 80 लाख का घाटा सिर्फ डीजल की भाव बढ़ने से ही
कारपोरेशन को घाटा आ गया है। और इसके अलावा हमारे मौजून खान साहब बोले हैं, जरूर जो है हर एक जो है मुनाफे में चलता, बोले तो कारपोरेशन को मुनाफा में चलना ही जरूरी है साहब। मुनाफा में नहीं चले तो अब क्या करेंगे सर? अब ये साल जो है 1500 करोड़ रुपया हमारे बुजुर्ग हमारे सीएम साहब जो है आरटीसी को दिए, पिछले साल 1500 करोड़ रुपए दिए और उसके अलावा और 1500 करोड़ रुपए जो है लोन गारंटी दिए। उससे पहले साल जो है 1000 करोड़, मैं मिनिस्टर बनने के बाद साहब 4,500 करोड़ रुपए जो है हमारे एक्सचेकर से जो है कि आरटीसी को दिए। कौन सा ऐसा हुकूमत था सर जो आरटीसी को इतना पैसा जो इससे पहले दिया? कोई हुकूमत नहीं दिया साहब। इसको बचाने के लिए हमारे साहब जो है जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। इसके वजह से जो है आप कुछ इतना इसमें मतलब आरटीसी के ऊपर जो दर्द है, जो आप जो बता रहे हैं, हम उससे ज्यादा जो है हमारे को उसके ऊपर कंसर्न है सर। आप बोले ऐसा जो अगर कोई एक आध रूट में अगर आपको मिनी बसेस चाहिए तो आप मेरे को आप जिक्र करिए साहब, जरूर मैं वो ये करता हूं। और दूसरी बात है, आप जो आंकड़े जो मांगे हैं सर, उसमें एक जरूरी कहना है कि आज तक जो है कोई डिपो क्लोज नहीं हुआ है सर। अब वो जीएचएमसी होने दीजिए या पूरा स्टेट होने दीजिए, जितने भी 97 डिपोज है, 97 के 97 डिपो चला रहे सर। कोई ऐसा एक भी डिपो नहीं है जो है हम बंद करें सो है। और उसके अलावा जो है हमारे मुमताज अहमद खान साहब जो आप जिक्र करें साहब, आपके पास जो बस स्टैंड था वो जो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो है उसको डिमोलिशन कर दिया है। तो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो डिमोलिशन हुआ है उसके वजह से जो है वहां पे हमारे को बस स्टैंड नहीं रहा। बस स्टैंड अगर रहता था तो चारमीनार, अब चारमीनार में क्या हो गया सर, वो हेरिटेज बिल्डिंग हो गया। उसके वजह से पोल्यूशन की वजह से जो है वहां पे बसें चलाना नहीं है बोल के डिसीजन लिए हैं। अगर आप समझो वहां पे फिर बस स्टैंड बनाने के लिए वो जगह जो जेएचएमसी को दिया गया था उसमें अगर हम हमारे को सौंप दिया तो हम जरूर जो है वहां पे बस स्टैंड चलाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे और वहां से जो है बसें चलाएंगे। जैसे हमारे आपने जो जिक्र किया है, हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब भी राजी है, तो उन्होंने जेएचएमसी के तरफ से जो है आपने जो बताया है उसके लिए साहब भी एग्री हुए हैं। जरूर हम जो है मतलब మీరే ఇషారా ఇచ్చిరన్న అందుకని ले నేను కట్టిస్తాను చెప్తలే सारे కట్టిస్తా అన్నాడు। उन्होंने खुद बना के दे तुम बोल के बोले साहब, बहुत शुक्रगुजार हूं हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब को और ओल्ड सिटी एमएलए को। और दूसरी बात है साहब, मैं आपको कल के हमारे डिमांड में भी बताया साहब, जो पीआरसी साहब पहले जो पीआरसी दिया था तब जो है एम्प्लॉयज को जो है 43% फिटमेंट दिया, तो आरटीसी को 44% फिटमेंट दिया था साहब। हमारे साहब बड़े बहुत दिल के बहुत बड़े आदमी है साहब हमारे सीएम साहब, इसके वजह से 44% फिटमेंट दिए थे। मगर क्या आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादे के मुताबिक तेलंगाना के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी फौरी शुरू करने कबायली तलबा की तंजीमों ने मुतालबा किया। शरद नायक की सदारत में इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में गोल मेज़ इजलास मुनक़िद हुआ। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सीताराम नायक, कौमी सदर बालैया नायक और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर इन तमाम ने जारिया तालीमी साल से गिरिजन यूनिवर्सिटी के आगाज़ का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत में 80,000 मुलाजमतों की फराहमी के सिलसिले में वज़ीर आला के फ़ैसले का खैर मक़दम किया। ताहम उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से रिज़र्वेशन की पॉलिसी पर अमल किया जाए ताकि क़बायली तलबा के हुकूक़ मुतासिर न होने पाएँ। ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో పేర్కొనబడినటువంటి తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి ట్రైబల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఈ రోజు వరకు కూడా క్లాసులు స్టార్ట్ కావడంపై ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఇలా గిరిజన శక్తి, ఎల్ఎస్ఓ, గిరిజన చైతన్య వేదిక మరియు టీజీవీఎస్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా విద్యార్థి నాయకులు, మేధావులు, ప్రొఫెసర్లు, అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు కూడా పాల్గొని ఇప్పటికే ఆలస్యమైనటువంటి యూనివర్సిటీ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అయినా ప్రారంభించకపోతే తదుపరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకునే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించి మా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को धरना देने का आरटीसी मुलाजमीन ने फैसला किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद बस भवन में आरटीसी के सदर नशीन की पेशी के अहदेदारों को ये नोटिस दी गई है। इस मौके पर कहा गया कि पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्स की कमी के सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की गई और जद्दोजहद की गई, ताहम हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया।
उन्होंने आरटीसी यूनिट के इंतखाबात का भी मुतालबा किया और कहा कि रियासती बजट में आरटीसी के लिए सिर्फ 2% ही अलॉट किया गया है। కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలకు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు మార్చి 28-29 తేదీలలో 2 రోజులు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. ఆ సమ్మెకు ఆర్టీసీ జేఏసీ తరపున 9 సంఘాలు మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించుకుందాం. నేను జనరల్ కూడా అప్రూవల్ అయిపోయింది. ఆ సందర్భంగా ఇవాళ సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీలో 4 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి కార్మికులకు నష్టం చేస్తున్నారు. అలాగే డీజిల్ పెట్రోల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెంచి ఆర్టీసీ రవాణా వ్యవస్థను నడ్డివిరుస్తున్నారు. బల్క్ ఆపరేటర్ పేరు మీద ఈ మధ్యనే కేంద్ర ప్రభుత్వం 7 రూపాయలు పెంచి ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. వీటన్నిటితో పాటు రాష్ట్రంలో కూడా ప్రభుత్వం కార్మిక సమస్యలపైన స్పందిస్తలేదు. 2 వేతన సవరణలు జరగాలి, 6 డిఎల్ రావాలి. అలాగే బడ్జెట్లో 2% పెట్టమంటే 1500 కోట్లు పెట్టడం జరిగింది. 1500 కోట్లలో 1200 కోట్లు రియంబర్స్మెంట్కే పోతాయి. ఆ 300 కోట్లు దేనికి సరిపోదు. ఈ యొక్క ఆర్టీసీ సిబ్బంది యావత్తు సిబ్బంది పాల్గొనాల్సిందిగా ఈరోజు సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగినది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మరి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शहर की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में हैदराबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा रोड सेफ्टी अवेयरनेस शी टीम्स एंटी ड्रग अवेयरनेस स्टॉल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन स्टॉल्स के ज़रिए ट्रैफिक कवायद के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ज़ेर इस्तेमाल असरी टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर विंग्स की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात के ताल्लुक़ से शहरियों को मालूमात फ़राहम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्टॉल्स में मौजूद अमला यहाँ आने वाले अफराद से दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए इनमें ट्रैफिक कवायद और रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करेगा। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने तलबा से बातचीत करते हुए अपने बचपन के दौर से मुताल्लिक़ नुमाइश की यादें भी ताज़ा की। उन्होंने कहा कि वह हफ्ते में 2 मरतबा अपने दोस्तों के साथ नुमाइश आया करते थे। When COVID the wave was going and slightly tapering down, when my friends of this exhibition society approached, and we were ready, forthcoming in giving the permission, because మేము కూడా మీతో భాగస్వాములమే. Economy has to be revived at any cost. That is the concept, related to this, who depend on this. As he said, this 2 months income last for the next 10 months. So without this, they will be all poverty stricken again. Again, there will be unemployment. And finally, as police officers, we have to recognize that such a thing will lead to increase in crime over a period of time. So we have to ensure that the economy is back on track at the earliest. And the best way to do is to encourage such activity, economic activity. So we are all with you, Exhibition Society. You're asking for extension. Definitely that will be considered. And we, as long as it is possible, will try to do it. But of course, festival season is starting. ఇప్పుడు ఈ పండుగలు, ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన శ్రీరామ్ నవమి, హనుమాన్ జయంతి, రంజాన్, ఈద్, దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మా ఫోర్స్ కమిట్మెంట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో అది చూసుకొని రివైవింగ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఆర్థికంగా ఈ రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో అది బలోపేతం కావాలి. అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ నెసెసరీ should be encouraged for the revival of such economics. So we are with you, and definitely it will be considered, and most probably we'll do something about it. तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के 3 अरकान की असेंबली से मुअत्तली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस केस में स्पीकर असेंबली के फैसले पर किसी भी किस्म की मदाखलत से भी इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के 3 अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था। आज इस केस का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने इन तीनों की मुअत्तली पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि स्पीकर असेंबली को खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं।
इस फैसले के बाद बीजेपी के 3 अरकान असम्बली जारिया बजट सेशन के अख्ताम तक ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि बजट सेशन के आगाज़ के मौके पर बीजेपी के 3 अरकान असम्बली ईटाला राजेंद्र, रघुनंदन राव और राजा सिंह ने ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज किया था, जिस पर इन तीनों को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े कारवान में शाह हतीम तालाब के काम में फ़ौज की जानिब से रुकावट का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि फ़ौज की रुकावट की वजह से शाह हतीम तालाब की तरक्की रुक गई है। इस तालाब का एक हिस्सा फ़ौजी इलाके के हुदूद में आता है, जहां चेक डैम बनाते हुए पानी को रोक दिया गया है। इस पर वज़ीर IT तारक रामाराव ने जवाब देते हुए कहा कि कई मरतबा इस सिलसिले में फ़ौजी हुकाम से दरख्वास्त की गई। अगर इस पर फ़ौज रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगी तो इसके पानी और बरखी की सरबराही को रोक देने पर गौर किया जाएगा। आपने जो बात कहा कौसर साहब, बुल्कापुर नाले की जो आपने बात कहा, जो आपने हमारे शातम तालाब में जो तकलीफ हुई थी, नदीम कॉलोनी में जो तकलीफ हुई थी, जहां हम लोग गए थे साथ में, आप और हम और हैदराबाद के MP साहब भी थे। इस बात को लेकर मेरे को भी बहुत चिंता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है कंटोनमेंट में, खास जो हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज है, बेवजह तकलीफ पहुंचा रहे हैं हैदराबाद की आवाम को। हमने बहुत बार शिकायत किया उनको। कंटोनमेंट में एक तरफ रोड बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ यहां पे बुल्कापुर नाला पे एक चेक डैम बांध के वो शातम तालाब, आज उसकी जो हालत है, एक तरफ से वो कवैपेमो कंटोनमेंट लो చెక్ డ్యామ్ గట్ట నీళ్ళు ఆపుతున్నారు సార్. దానివల్ల నదీం కాలనీ మునిగిపోతున్నది. పోనా శాతం చెరువు నుంచి కిందికి ఆ గోల్కొండ కింది నుంచి ఏఎస్ఐ వారు పర్మిషన్ తీసుకొని కిందికి నీళ్ళు వదిలి పెడదామంటే అక్కడ ఏఎస్ఐ అడ్డం, ఇదికేమో కంటోన్మెంట్ అడ్డం అధ్యక్ష. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की. अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा. अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे. वजीर सेहत हरीश राव ने रुकन असम्बली मदन रेड्डी की अयादत की, जिनके घुटने की सर्जरी सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में हुई. वजीर मौसूफ ने डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और बेहतर इलाज का मशवरा दिया. वजीर मौसूफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रुकन असम्बली मदन रेड्डी जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे. सैयद अकबर हुसैन साबिक सदर नशीन अक़लियती मालियती कारपोरेशन और मोहम्मद वहीद एडवोकेट रुकन रियासती वक्फ बोर्ड ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सेहत की खराबी की इत्तला पर दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन में पहुंचकर आयत करीमा का एहतमाम किया, ज़रूरतमंदों में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम की और वज़ीर आला की सेहतमंदी के लिए दुआ की. इस मौके पर फ़हीम, एजाज़, अफरोज़, मसीह, सलीम और दूसरे मौजूद थे. आज हिंदुस्तान हैदराबाद सरजमीन पर जिस तरह हज़रत बाबा बाबा दरगाह में यहाँ पर हर मज़हब के लोग इस नीयत और इरादे से आते हैं, वो इरादे से वो नीयत भी और इरादे से कबूल होती है बारगाह में. यहाँ आज हमारे रियासती चीफ मिनिस्टर, हमारे अब्दुल अजीज़ रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और साहब की जिस तरह साहिब सुबह आज यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में उन्होंने गए बाद उनकी पूरे टेस्टों के बाद और इंतजाम के बाद अल्लाह के फजल से इस गुज़रान दिन के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा का दिन है. आज नमाज के बाद यहाँ पर आयत करीमा का भी दस्तर हुआ था, इसमें भी दुआ हुई. आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त वक्फ बोर्ड मेंबर वही साहब और दीगर हमारे फ़हीम और एजाज, दीगर हमारे और सलीम, कई लीडर्स, पार्टी के लीडर्स यहाँ बारगाह में चादर और गुलाब पेश किया गया है. इस गुजरान दिन के पास कभी भी रियासती तेलंगाना की जब तहरीक शुरू हुई थी, उस टाइम भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक मन से यहाँ पर हाजिर किए थे. अल्लाह के फजल से तेलंगाना हासिल हुआ. हम जो भी काम के लिए, जो जिस तरह जब परेशान में रहते, सुख में रहते, दुख में रहते, यहाँ पर जब आके गुजरान दिन के पास जब मांगते हैं, अल्लाह के फजल से वो मुकम्मल तौर पर दुआ कबूल होती है. अल्लाह के फजल से आज हिंदुस्तान के वाहिद एक सेकुलर लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब. अल्हम्दुलिल्लाह KCR साहब के लिए सिर्फ रियासती तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर पर आज सुबह में जब उनको TV पर देखे बाद, दवाखाने के देखे बाद, हर गरीब के घर में जिस तरह अपने घर में जब तकलीफ महसूस होती है, अपने किसी को कुछ हुआ तो जैसा महसूस होता है, उसी तरह आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना की अवाम एक बेचैन होकर हर जगह, हर मज़हब के लोग यहाँ पर, हर रिलीजियस या हिंदू भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरह आज हम यकीन-ए-मन पर हम पूरे मिल के यहाँ पर आके बारगाह में दुआ किए गए. इंशाअल्लाह जुम्मा में भी
हर मस्जिदात में भी दुआ किया गया है। केसीआर साहब के लिए अल्लाह सेहत दिए, अल्लाह और उनके हमेशा हज़ारों साल हमेशा रहेंगे। और रियासत तेलंगाना जब तक हुकूमत कायम रहेंगे बराबर यहाँ पर केसीआर साहब को अल्लाह इस गुज़राने दिन के सदक़े से सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। और केसीआर साहब की क़यादत में इस तरह के टी रामाराव साहब बंदो, हमारे कई मिनिस्टर्स विनोद कुमार साहब बंदो, संतोष साहब बंदो और दीगर इस तरह कई काम कर रहे हैं, बहुत ही खुशहाली से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तेलंगाना के अवाम बहुत ही खुशी से है। वही मंजर देखते हुए अपने सब लोग अपने घर के आदमी समझ के यहाँ इस गुजरानी दिन के पास दुआ के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सब लोग आए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। गुजरानी दिन के सदक़े से अल्लाह उनको और सेहतमंद के साथ जल्द से जल्द और इंशाअल्लाह वो अवाम के सामने दिखेंगे। सईदाबाद इलाके में कल शब उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नौजवान ने एक ही ख़ानदान के 3 अफराद पर खंजर से कातिलाना हमला कर दिया। यह वाक़या कल शाम सईदाबाद क्रांति नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शनमुगम नामी नौजवान ने कल मुकामी ईसाई को निस्बती बरादर कहते हुए मुखातिब किया, जिस पर वो बरहम हो गया और इसने अपने अरकान ख़ानदान को इस बात की इत्तला दी। इसी दौरान शनमुगम का साई के बाप श्रीधर से भी इस मसले पर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान बरहम शनमुगम ने खंजर से श्रीधर, इसके बेटे साई के अलावा राजेश नामी एक और नौजवान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो तीनों जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। चाकूजनी की इस वारदात के साथ ही इलाके में कशीदगी फैल गई और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और हमलावर के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हमले के पसे पर्दा लड़की से छेड़छाड़ की वजूहात बताई जा रही हैं। आज क्या हुआ बोले तो हमारा बच्चा घर से निकल के हमारे भाई घर को आया। हमारे भाभी जो पुलियोरा बन के दिए तो आ रहे तो 6 बच्चे मिल के राउंड अप कर लिए उसको गालियाँ दिए। तो क्या समझ में नहीं आया उसको। फिर क्या हुआ, मेरे को आके बोला ऐसा गालियाँ दे रहे बोले तो मैं आया तो परसों हमारा भाई मर गया था और 10 डेज़ के दिन कुछ गड़बड़ हुआ करते उसमें उन्हें बोल रहा था और भाई हमारे बच्चे को घेर के मार रहे थे। हम बीच में आए तो एक बच्चा चाकू निकल, पूरे 6 जने थे, एक बच्चा चाकू निकल के मार दिए मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे भांजे को, मेरे दामाद को मार दिए। एक को तो एक 7 हाथ स्टिचेस पड़ा, एक को 3 स्टिचेस पड़ा, हमारे दामाद को 9 स्टिचेस पड़ा, मेरे को तो मार दिए, पेट में मारे, हाथों पे मारे। बस मारने की वजह वो समझ में नहीं आया। वो पुराना क्या है उसको बच्चे से क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। वो ऑटो ड्राइवर अब्दुल रहमान ने बालापुर हाईवे होटल के रूबरू गली में वाक़ प्लॉट पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस सिलसिले में जारी वीडियो में कहा कि राउडी शीटर्स और लैंड ग्रैबर्स ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। प्लॉट पर जाने पर उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जान का धोखा है। इस सिलसिले में उन्होंने बालापुर पुलिस से शिकायत भी की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। बालापुर PS लिमिट हाईवे होटल के अपोजिट गली में मेरा प्लॉट है 100 गज का। वहाँ पे लैंड रॉडी शीटरा, लैंड माफिया उन लोग कब्जा करके बैठ चुके हैं। मैं प्लॉट पे गया तो मेरे को मार देते कर देते, कौन है ये हमारा है वो ये बोल के मेरे को मारने के चाकू वाखुआ बता रही, मेरे को मारने के धमकियां दे रही। मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे को बच्चे वगैरह है, मेरे को जैसो जान का धोखा है। मैं बालापुर PS में ये कंप्लेंट भी दे चुका हूँ CI साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पेक्ट मिला है मुझे। और जैसो मैं ये दिए तो और उन लोगों जैसो अगेंस्ट वाले लाके जैसो कोई डम्मी कैंडिडेट मतलब किसी गरीब को लेके आके शो करके इनको, और एक फहद बोल के है उन्होंने जैसो किसी को बेचे बोल के फहद साहब लेके आए, मैं इनको बेचा बोल के लेके आए, उनको लेके आए अंदर। 15-20 जने बाहर रॉडी शीटरा खड़े हुए बोले। फिर वो सर CI साहब समझा के करके भेज दिए कि आप लैंड पे नहीं जाना करना बोल के भिजा दिए। तो बाहर निकल के बोल रहे हैं सो PS वगैरह हम लोग मैनेज कर लिए, जहाँ जाते जो करते करो देखेंगे बोल के बोले। साहब मेरे को जान का धोखा है, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा प्लॉट मेरे को चाहिए, मेरा पूरे मेरे कन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुरू से आखिरी तक का मेरे कन मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये पेपर्स मेरे लैब को चेक कराइए, उनके भी पेपर चेक कराइए, मेरे जिसका जुनून ही है उनको दे दीजिए। लैंड माफिया के नामा बोल रहा हूँ, साजिद, इफ्तिखार, अबरार, फहद, आसिफ, माजिद। और इन लोगों का मेन इफ्तिखार है जो लोग चैन बना के पूरा
कर रहे हैं। ये पूरे रॉडिस्टर्स है। ये इन लोगों के नाम है। राजेंद्र नगर पीएस में भी इन लोगों के एफआईआर है, पहाड़ी पीएस में भी है, बालापुर पीएस में भी इन लोगों के कंप्लेंट्स है। ये लोग आए और मेरे प्लॉट पे भी इन लोग बैठ के नाइट में काम करा रहे हैं साहब, और मेरे को आना नहीं जाना नहीं, मेरे को बोल के बोल रही चाकू वगैरह ये वो हथियार वो ये बता रही। मैं इस बारे में कल साहब पीएस को बुलाए थे, अगेंस्ट वालों को भी, तो फहाद नसीर साहब को ले लेके आए थे। मैं भी आया था। फहाद साहब बोले नसीर साहब को मैं बेचा बोल के शो करे, और उल्ला वकील को ले लेके आए। वकील को ले लेके आए। बाहर जैसे 15-20 जने रॉडी शूटर आए, पूरे बाहर गैंग बना के बैठे हुए। इन लोगों की वीडियो आप पीएस के कैमरों में देख सकते कितने जने हैं। और इल्ला जाते खुद भी धमका के करा के पूरा तन के गाड़ी के हौराना वगैरह मार लेते कर लेते। वो ये बोल के देख लेंगे क्या है क्या नहीं बोल के जा रहे हैं साहब। मेरे को मेरी जान का धोखा है। मेरे को जुनूबी ज़िले पुलवामा, वस्ती ज़िले गांदरबल और शुमाली कस्बे हिंदवाड़ा में तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश के एक पाकिस्तानी कमांडर समेत लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया, जबकि एक जंगजू को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा के चीवा कलान इलाके में मारे जाने वाले जैश मोहम्मद के जंगजुओं में से एक पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल है। उन्होंने महलूक पाकिस्तानी कमांडर की शिनाख्त कमाल भाई उर्फ जट के तौर पर की है। उनका कहना था कि महलूक पाकिस्तानी कमांडर पुलवामा और शोपियां अजला में साल 2018 से सरगर्म था और वो कई मिलिटेंसी जराइम और आम लोगों के साथ ज्यादती करने के वाक़यात में मुलविस था। मौसूफ आईजी ने कहा कि हिंदवाड़ा के निछापा इलाके और गांदरबल के नौनिर इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक और जंगजू मारा गया।